Hello and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. And the news is in Australia winning this game against Afghanistan. Very close for Afghanistan. Really well done. Just lost a little bit of their way, but they had Australia give them a run for their money. This is how the match went down. Australia batting first. Scored 168 for 8. Now, obviously, I think they were trying to get a big total in there and lost wickets frequently. Maxwell there with the 54 and 45 there by Marsh. Good contribution. Naveen there picking up 2 for 21. Fazal 2 for 29. And then Rashid and Mujib also contributing. Mujib, the expensive one. In response, Afghanistan came out all guns blazing. Rashid scoring that 48 in the end and really looked good today. Gulbadin, Gurbaz, Ibrahim, everybody kind of, contributing to that. Zampa 2 for 22, really well done. Hazelwood also and Richardson contributing, but was a little expensive. In the end, Australia won by 4 runs. आइए जरा नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल के ऊपर कि सूरत हाल अब यूं है. ऑस्ट्रेलिया के लिए मामला बहुत गंभीर हो चुके हैं. इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके थे. ऑस्ट्रेलिया इज राइट नाउ द सेकंड टीम ऑन दैट टेबल राइट नाउ. बट हियर्स द थिंग, अगर कल इंग्लैंड श्रीलंका से मैच जीतता है तो इंग्लैंड विल बी थ्रू टू द सेमीफाइनल्स. न्यूजीलैंड हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स. सो इफ टुमारो इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, अगर इंग्लैंड जीतता है तो वो सेमीफाइनल में जाता है. अगर बारिश हो जाती है, इंग्लैंड श्रीलंका का मैच नहीं होता, तो भी इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल में जाता है. बाकी टीमों का द रोड हैज कम टू एन एंड. दिस इज हाउ द सिचुएशन इज. इट्स एन इंटरेस्टिंग पोजीशन राइट नाउ. And let's see how this turns up. So, with me in the pavilion, I'm joined by the legends, the monuments of the game of cricket. I've got the young and dynamic Shoaib Malik. Shoaib, welcome. I've got Mr. Dependable, Mr. Reliable, Misbah ul Haq. Misbah, welcome. Assalamualaikum. I've got the toe-crushing, batsman terrorizing, the wonderful Waqar Younis. Waqar, welcome. Assalamualaikum. And I've got the GOAT, the legend, the Sultan, Wasim Akram. Wasim, welcome to the pavilion. That was a close call for Australia there. I think for a bit they were a little worried that this was not the Afghanistan they were anticipating. Thank you, Fakhr, and Assalamu alaikum, everyone. Absolutely, what a close game. They definitely given a little of a scare in the last. The way Rashid Khan played, 48 he scored, and but I think they were winning at one stage. वही इनएक्सपीरियंस टीमों का यही होता है कि जब भी वो मैच जीतने लगती हैं. वी वर डिस्कसिंग, आई वाज वाचिंग द गेम. आई थिंक यू गाइस केम लिटिल लेट. यू गाइस, आई थिंक शोएब वाज सिटिंग देयर. दे वर 99 फॉर 2 in 12 overs. They needed 75, 76 in 8 overs with 8 wickets in hand, and then they lost 4 wickets in succession. So बजाय के वहाँ सिर्फ सिंगल्स करते, इधर जाते उधर जाते, एक आधी बाउंड्री देखते, दे रन आउट डिड द ट्रिक एज वेल. ग्लेन मैक्सवेल की जो डायरेक्ट थ्रो लगी है, ये देखो, उसने डाइव भी ऐसे मारी है जैसे एक ईंट की दीवार से गिरा है. एंड देन ज़ैम्पा गॉट द सेकंड विकेट. एंड देन दैट वाज ही वाज द मेन प्लेयर. नजीब इस सिचुएशन में डेंजरस प्लेयर. इस वर्ल्ड कप में शॉट सिलेक्शन इनकी ठीक नहीं थी. एंड देन द स्किपर वाज आउट ऑफ टच एनीवे विद हिज बैटिंग. Yeah, there you have it. That's how it went down. Just a quick correction there. I said अगर कल मैच वॉश आउट होता है तो भी इंग्लैंड जाता है. That's not correct. अगर वॉश आउट होता है then Australia continue. So the only way Australia can move on to the semi-final, the defending champions, ladies and gentlemen, is if Sri Lanka defeat England tomorrow or if the game is washed out. Waqar, another batting collapse for Afghanistan. Yep, they didn't play that well. I mean, against बड़ी साइड के even 168 भी runs ज़्यादा होते हैं sometimes, especially playing in their backyard. और जब भी आप देखते हैं ना कि जो जूनियर टीम होती है या उतनी ज़्यादा नहीं क्रिकेट खेली होती टीम, वो जब उनकी सिचुएशन बनती है ना कि वो जीतने की तरफ जा रहे हैं, तो देन द हाथ पैर जो हम कहते हैं ना, हाथ पैर फूल गए, तो हाथ पैर फूले हैं उनके. आज बहुत अच्छा खेल रहे थे, बड़ा अच्छा जा रहे थे, स्मूथ जा रहे थे. देन दैट रन आउट जो वसीम भाई ने भी मेंशन किया, जो मैक्सवेल का, उसने एकदम चीज़ें चेंज की. और फिर Nabi ka total flop throughout the World Cup. I think that didn't really help their cause. Or Najib is a big hitter and didn't really come good at all. I mean, Afghanistan coming that close thanks to Rashid Khan. I think he batted really well. And Gulbadin played well. Yeah, absolutely. But Australians looked quite
timid today, am I जी, right? yeah. वो ऐसा लगा ऑस्ट्रेलियन कि टीम नहीं लगे शेबी। ऐसा लगा कि वो काइंड ऑफ गिव अप कर दिया हुआ है Yeah. क्योंकि बॉडी लैंग्वेज मैंने कभी ऑस्ट्रेलियन टीम की ऐसी नहीं देखी जो आज बॉलिंग करते हुए थी। तो आई गेस दे काइंड ऑफ गिवन अप ऑन रीचिंग द सेमीज, बट आई गेस दैट्स नॉट व्हाट यू कैन कंट्रोल। यू कैन ओनली कंट्रोल व्हाट यू नो एंड दोज आर योर गेम प्लान्स, और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो राइट होनी चाहिए। एंड मिसबा अनदर क्वेश्चन, जी, जी। आई थिंक एक तो इनकी प्लेइंग 11 की सिलेक्शन ठीक नहीं थी। ये वो टीम थी जिसके खिलाफ मिचेल स्टार्क एक्चुअली विकेटें ले सकता था विद द न्यू बॉल। आई नो इसका रिकॉर्ड इतना ठीक नहीं है लास्ट 2 सालों से। आई थिंक सो, बट उन्होंने इस मैच में प्रीवियस परफॉर्मेंस और स्पेशली जो पावर प्ले के उनकी फिगर्स थी उसकी वजह से उन्होंने चेंज किया। जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि रिचर्डसन आए उनकी जगह, वो भी बहुत एक्सपेंसिव हुए और कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सके। तो ओवरऑल आई थिंक वो जो चेंज थी वो वर्क नहीं की, स्पेशली एंड पे जो राशिद खान ने किया है तो उसने बिल्कुल ही कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब उनके पास एक ही चांस रह गया कि श्रीलंका अगर मैच जीतती है तो देन या बारिश हो जाती है। Yeah. Gulbadin played really well. All Gulbadin started the assault. And then I think Ibrahim Zadran also struggled in the beginning. Although they recovered well after that, he got 26 of 33. At one stage it looked like कि उससे बल्ले पे गेंद लगना ही नहीं है। I think it was a very good knock by Gulbadin. Yeah, Obviously 99 for 2 at that stage in 7 overs they were in the game. पीछे उनके पास फायर पावर भी थी, लेकिन वही चीज़ है कि आप जिस तरह शारजा में खेलते हैं वही आपके सिर्फ छक्कों पे खेलना है। ऑस्ट्रेलिया में आपको एक आधी बाउंड्री मारनी होती है और बाकी आपने कोशिश करनी होती है कि दौड़ के रन्स करने। तो वो 8-9 रन्स सेंसिबली खेल के होते हैं। अगर आप हर बॉल पे मारने जाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त क्लीन हिटिंग भी की है और प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे डाले रखा है। ऑलमोस्ट 14वें ओवर तक गेम में रहे हैं, उस रन रेट को उन्होंने ऑलमोस्ट वो कैरी किया है। बट सडनली वो जैसे ही रन आउट हुआ तो एकदम ऐसे लगा कि जैसे गेम गुलबद्दीन कप्तान भी रह चुका है, और दूसरा ये है कि इन एंड आउट ऑफ टीम रहा है। यू नो ही इज एन ऑलराउंडर, यूजुअली इसको अब ऊपर खिलाते हैं। Okay. ही इज एन ऑलराउंडर, लेकिन आई फील कि उसकी बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है। या तो बिल्कुल ही नया बॉल दें तो ही माइट बी बिकॉज ही हिट द सीम। जो ही थोड़ा सा पुराना होता है बड़ा फ्लैट ट्रैक पे बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज पेस नहीं है। लेकिन बैटिंग में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बड़ा सॉलिड है, और जिस तरह की इनकी पहले भी मैचों में बैटिंग चल रही थी इसको पहले खिलाना चाहिए था, इसको थोड़ा लेट खिलाया। ऐसे केन रिचर्डसन में क्या इशू था उनकी It's the बॉलिंग में length. आज? He wasn't bowling the right It's length, just right? the length. Yeah, very average. ये आप अभी देख रहे हैं bowling ball. Even I mean इस एडलेड की पिच हम सबको मालूम है कि such a good pitch to bat on. और अगर आप उसको बैक ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे तो इट बिकम्स, क्योंकि साइड बाउंड्री छोटी है ना, सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट मे बी मूव अवे अ लिटिल बिट एंड जस्ट स्लाइस इट ओवर से। और कितने सारे इसको जो चौके और छक्के लगे हैं, दे मोर स्क्वायर ऑफ द विकेट, दोनों तरफ लगे हैं। सो आई वन कांट रियली से दैट इट्स हिज फॉल्ट, लेकिन ये है कि when you don't play on a regular basis, when you suddenly you're asked to play a game on a flat deck, this can happen. See that the length was very poor. Either you have to be really full or wide. ये देखें, ये भी another very easy picking ball, another easy picking ball. So बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की। आई मीन किसी ने कोई यॉर्कर करने की कोशिश नहीं की, किसी ने चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से इनको ये आई मीन जीत तो गए हैं, लेकिन उनकी एंड पे आपने देखा कि जिस तरीके से वो बाहर जा रहे थे, दे वर लाइक वेरी डिस्कस्टेड। Now, मिसबा, हम हमेशा जब पाकिस्तान के मैच में होते हैं हम कहते हैं यार बॉलर से किसी को जाके बात करनी चाहिए, somebody should go, a senior player or the captain should have a word. Doesn't look like anybody went to Kane Richardson and had anything to say. आई थिंक ओवरऑल वसीम भाई ने पहले ही बात की कि आज जो बॉडी लैंग्वेज थी, स्पेशली टॉस के बाद से ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि सडनली आपके सारे प्लान्स जो है वो दरम भरम हो जाते हैं। जैसे आपने बात की कि उनको बड़ा ज़रूरी था ऑस्ट्रेलिया के लिए कि आज वो बॉलिंग करते पहले और फिर एटलीस्ट उनके पास चांस होता जितना भी टारगेट है कि क्लियर कट के हमने ये चेज़ करना है जल्दी। जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप सडनली ऐसी सिचुएशन में आते हैं, यू डोंट नो कि यार कौन सा टारगेट हमने सेट करना। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया आराम से 25-30 रन शॉर्ट हुआ है सिर्फ इस वजह से कि एट टाइम्स दे वर लुकिंग टू स्कोर इवन 200, मोर देन 200।
There was no in between. नो इन बिटवीन। वो होता क्या है कि आप उसमें समटाइम्स अपना प्रोसेस भूल जाते हैं। बैट्समैन 10 की बजाय आप सिर्फ बाउंड्रियों पे चले जाते हैं, उसमें विकेट्स आपकी चली जाती हैं। देन यू हैव टू रिवाइज द टारगेट, और रिवाइज टारगेट आपका नॉर्मली अगर वो 190 भी यहाँ कर रहे थे तो वो 169 रह गया। मेरे ख्याल में वो ओवरऑल टॉस के बाद मुझे लगा कि, और फिर उनकी जो इंजरीज की वजह से चेंजेस आई, वो भी इन फॉर्म बैट्समैन, तो वो भी मेरे ख्याल में अफेक्ट कर गई है। अब ये इम्पैक्ट प्लेयर की जब हम बात करते हैं, वो यही करते हैं ना, जैसे ग्लेन मैक्सवेल की ये जो 50 किया उसने आज 32 गेंदों पे, मतलब हर गेंद पे वो मारी गया, हर गेंद पे। और ये इसका पहला 50 था 28 T20 आईज में। दैट वाज हिज फर्स्ट 50। अगर ये हमारी टीम में होता तो अभी तक तो आई डोंट नो अबाउट सेलेक्टर्स, बट ट्विटर पे इसको उन्होंने सैक कर दिया होता। कर दिया होता। We're going to take a break, but when we come back, we'll talk about that Glenn Maxwell innings that Wasim just referred to. Don't go away. Keep watching the Pavilion on A Sports, 10 Sports, and the ARY's app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports, and the ARY's app. And we're talking about the last game that was played between Australia and Afghanistan. अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत टेंशन दी आज के मैच में, और एक वक्त भी यूँ लग रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाएगा, बट बदकिस्मती से उनकी 4 विकेटों का जो कोलैप्स हुआ बैटिंग के अंदर, उसके बाद बड़ा मुश्किल था। मगर हम लोग हमेशा राशिद खान की बॉलिंग की बात करते हैं, आज उनके बल्लेबाजी की भी एक शानदार नुमाइश थी। यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। व्हाट अ ग्रेट इनिंग्स देयर प्लेड बाय राशिद खान टुडे। शोएब, बहुत अच्छी इनिंग्स है, और जिस तरह हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे, ये उनका होम ग्राउंड भी है, तो उनको पता है कि साइड की बाउंड्रीज जो हैं वो छोटी हैं, इसीलिए आप देखें सिवाय इस 6 रन के उन्होंने मोस्टली शॉट्स जो हैं उसी तरफ जहाँ पे छोटी साइड थी उस तरफ के खेले हैं। ये फुल बॉल था ओवर मिड ऑफ, बट जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, एंड इट शोज़ कि वो सिर्फ एज अ बॉलर नहीं खेलते, वो एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं टीम में। Don't you think he's a bit underrated, guys? As a batsman, he's a very dangerous player. आई थिंक उस तरीके से यूज़ नहीं कर रहा है अफगानिस्तान उसको। जहाँ पे भी टाइम आता है तो वो मेनली दूसरे प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म भी हैं वो ऊपर जाते हैं। आज भी अगर वो थोड़ा सा उसको ऊपर भेजते हैं, और स्पेशली जो इनिंग इसमें आप देखें कि नॉर्मली ये हमेशा से हम देख रहे हैं एडिलेड में जब ग्राउंड्स की भी कंपैरिजन होता है, साइड बाउंड्रीज छोटे होने की वजह से, होबार्ट में भी जिस टेक्निक से वो पूरा अगली टांग खोल के पिछली टांग को ऑफ स्टंप के बाहर ले जाते हैं, वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि जहाँ पे बड़ा आपके लिए ये आसान हो जाता है। जी, एनीथिंग फुलर भी, ये अगर फ्रंट नेक आपकी क्लियर होती है तो इवन फुलर बॉल को भी आप लेके जा सकते हैं छोटी बाउंड्री की तरफ। ये क्रॉस चली जाती है, देन यू हैव टू हिट इट नॉर्मली स्ट्रेट, या इस तरफ आप मार सकते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त उसने उसको पोजीशन का, वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि वहाँ पे खेलने का आइडिया है, तो उधर जाके फिर बाहर वाले बॉल को ऊपर से ये स्लाइस कर रहा था पॉइंट के ऊपर से, और ये वाली शॉट है इधर मार रहा है। रिस्ट में बहुत जान है। ये नीचे अगर आप उसकी पोजीशन देखें, नॉर्मली जो लेग साइड पे जितने भी ये फ्रंट नेक खोलिए, नॉर्मली गेल स्टार्टेड दिस बिफोर, वो बिल्कुल ही ओपन होकर खड़ा हो जाता था और बीच वाले बॉल को उधर को ले जाता है। आई थिंक ये वही चीज़ है कि नोइंग द कंडीशंस एंड द ग्राउंड डायमेंशंस, और उसके मुताबिक यूज़ करना। तो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। Yeah, very good innings there by Rashid Khan there. Now let's talk about Glenn Maxwell. आप बात कर रहे थे वसीम ग्लेन मैक्सवेल की, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। यू राइट कि बड़े अरसे के बाद उन्होंने जो है एक सेंचुरी जो है वो गाड़ी है आज। ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाते हैं ग्लेन मैक्सवेल की बैटिंग। वकार, टेक अस थ्रू दिस बैटिंग एफर्ट बाय ग्लेन मैक्सवेल। देखिए, जब वंस ही गेट्स गोइंग इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पर चाहे वो राशिद हो, चाहे वो नबी हो, चाहे कोई भी बॉलर हो, बिकॉज जब इसका बल्ला चल रहा होता है, जब इसका रिदम हो रहा होता है, एंड और उसको एक ही गेम है, एंड इज़ बीन गिवन दैट रोल कि यू जस्ट गो आउट देयर एंड जस्ट कीप स्विंगिंग योर बैट, इफ द बॉल इज़ इन योर आर्क जस्ट गो फॉर इट। और बहुत ही खूबसूरती से खेलता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि एज अ बॉलर अगर मैं कहूँ कि इसको बॉल करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ़ ही इज़ इन फॉर्म। अर्ली ऑन आके आप इसको आउट कर सकते हो, मे बी जस्ट ट्राई टू बॉल हिम अ शॉर्ट बॉल और ट्राई टू बॉल हिम फ्रॉम अ गुड लेंथ, लेकिन वंस ही मेक्स अप हिज माइंड, और अगर ओवर थोड़े ज़्यादा हैं तो देन ही सम टाइम गेट स्टक इन, देन ही डजंट नो हाउ टू प्ले। बट अदरवाइज व्हेन ही इज़ बीन गिवन अ लाइसेंस के जी अच्छा जस्ट गो, 10 ओवर हैं, 12 ओवर हैं, जस्ट गो फॉर इट, you know, he is the most devastating batsman. It's very very difficult to bowl at him. आज राशिद भी स्ट्रगल कर रहा था, आज सारे बॉलर उसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, बिकॉज ऑल अराउंड द ग्राउंड he'll hit you sweep, he'll cut you, he'll hit you straight.
then you can't get away with it. Then you can't get away. Sorry. आज जिस वेन्यू पे मैच था एडिलेड में और जो अटैक था अफगानिस्तान का वो सूट करता था इनकी गेम को और उसका वो इसीलिए सूट करता था कि साइड की जो बाउंड्रीज थी वो छोटी थी और उनके पास मिस्ट्री स्पिनर्स थे और मिस्ट्री स्पिनर्स को मोस्टली रन स्क्वायर ऑफ द विकेट होते हैं क्योंकि आप उनका हाथ पकड़ना मुश्किल हो जाता है तो आसान होता है बैट्समैन के लिए जिसको ये दोनों शॉट्स खेलने आते हों जैसे मिसबा भाई भी खेलते हैं ये वाला शॉट और ये वाला तो इसीलिए ये आज उन्होंने पूरा यूटिलाइज़ किया कि उनकी फेवर की कंडीशंस थी और ये वेन्यू उनकी गेम को सूट करता था। लेकिन थोड़ा रिस्की भी तो हो जाता है ना फिर इस तरह के अगर आप जब क्रॉस खेलते हो देन अर्ली ऑन अगर आप खा के खेलो यू कैन लूज योर विकेट ऑल्सो। बट उनके केस में उनके लिए मिड ऑन मिड ऑफ पे सिंगल करना मुश्किल है इस तरह खेलना आसान है। मैंने उनके एक इंटरव्यू में सुना था कि मैं रिवर्स स्वीप मार के सिंगल लेना मेरे लिए आसान है एज कम्पेयर टू मैं मिड ऑन या मिड ऑफ पे सीधे बैट से सिंगल करूं तो आई गेस उनको ये सूट करता है। That's really why do you think that is, Misbah? गो टू आपकी कुछ शॉट्स होते हैं जो बहुत पके जैसे यूनुस भाई की स्वीप थी 100 के करीब जाते थे तो पता होता था हमें बाहर के बस अब 3 स्वीपें लगनी है 80, 87, 88 या 90 के करीब 100 हो जाना और मेरा भी यही होता था कि मुझे अगर 100 के करीब चांस मिला है फील्डर ऊपर आए स्पिनर पे तो स्लॉग स्वीप मिड ऑन के ऊपर से ये आपकी गो टू अगर शॉट है तो आप बैक करते हैं उसको हमेशा आपको इजी लगता है वो इसी तरह अगर नॉर्मल बॉल भी मुझे फाइन लेग नहीं है या इवन थर्ड मैन नहीं है तो इवन टेस्ट मैच में भी कई दफ़ा होता था कि मैं पहली बॉल पे भी छोटी स्वीप पैडल स्वीप मार देता था। तो ये आपकी गो टू शॉट कौन सी है? हलवा बुड़ी 36 समोसे हलवा बुड़ी जिसमें से तेल ना यूं करके निकल रहा हो पूड़ी में से कचौरियाँ दैट इज गो टू शॉट। That's my go अंदर to की shot. वीडियो आज लेके आनी थी लगानी थी यार कौन सी वाली? Go to shot वाली? डाइटिंग वाला खाना जो आया हुआ था जी। Alright, so there you have it now. ये एक दफ़ा फिर ज़रा पॉइंट टेबल के ऊपर नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद फिर गो टू शॉट के ऊपर बात करेंगे बट इज द पॉइंट टेबल एक दफ़ा फिर इसको देख लीजिए दोस्तों। इट्स इंटरेस्टिंग It is interesting. It is the England-Sri-Lanka game tomorrow that is pretty much going to decide who goes into the semi-final after New Zealand in this group. Or Australia did what they could. Now they'll just have to wait and see what happens in that next game. इसकी प्रेडिक्शन लें। आज रात तक तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ठीक है ऊपर रहना पर आगे मुझे डर लग रहा है कि शायद नीचे ना आ जाए। Overnight they will stay there. Overnight they'll be So England wins, they Yeah. qualify. That's Yes. it. Simple philosophy. yes. Yep. Because All their right. run rate is better than Yeah. Australia too. So my favorite go to shot, Wasim, are the packages that I have to announce. So with that, it's time to take a look at the fall of wickets brought to you by Coca-Cola. Wasim, it's time for the way forward. So Waqar, tell us, what is the way forward for Afghanistan? they're finished with their games, I guess. They're done with the games. Yeah. So General, I time- suppose, for the future, time. what do you think they should be I doing mean, to improve? I mean, किस चीज़ की ज़रूरत है उनको? I think they need quality fast bowlers. That's what we thought कि they're lacking in that department. And I think मैंने इनका अंडर 19 का लास्ट वर्ल्ड कप देखा था उसमें कुछ लड़के ऐसे थे जो कि आगे फ्यूचर में आपको दिखेंगे। सो आई फील कि उन पे काम किया जाए थोड़ा सा इनका बैटिंग का इश्यूज़ हैं वो ठीक किए जाएँ एंड आई थिंक वंस दे नीड टू प्ले मोर क्रिकेट आई थिंक द मोर क्रिकेट दे प्ले दे विल बी अ बेटर साइड। उतनी रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते जिसकी वजह से फिर क्रंच मोमेंट्स पे वो उनके हाथ से मैच निकल जाता है। And that was the way forward brought to you by Bank Al-Falah. And now it's time, Wasim, for my other go-to shot. Yes. That's a break on the Pavilion. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY's app and continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We are talking about the Afghanistan-Australia game just a while ago. And before we move on to the other game that we had today, Glenn Maxwell का जो out है वो बड़ा interesting है. मिस इसके ऊपर जरा आप comment करें. Sorry, David Warner का जो out है, this was very interesting. Zara, take a look at this on your screen coming up. So interesting. What do you make of that, Misbah? आई थिंक कि डिसीव हो गया पूरी तरह पेस की वजह से। एक्सपेक्ट कर रहा था कि तेज़ बॉल करेंगे उसको वो मारेंगे, वो एकदम मोमेंटम सारा ब्रेक हो गया और बिल्कुल वो सरप्राइज कर दिया बॉलर I को। think I've read बहुत अच्छी somewhere, Misbah, that David Warner as a kid was a right-hander. Yeah, that's Am I right? Yeah.
राइट हैंडर था, इसलिए जब वो राइट हैंड करता है, जब स्विच करता है तो लुक्स लाइक छक्के मारता है, छक्के मारता या And he plays golf right hand. he does like Brian Charles Lara. Yeah. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा मजे का आता है। अब जैसे उसने स्विच हिट मारी और अगर वो स्टंप्स को ना बॉल लगता, पैड्स पे लग जाता, Out. तो लेग भी 4 होता। Out. Yeah. Because उसने change किया ना अपना Yeah. stance. So that's not pitched outside leg stump. All of a sudden, that is He's a his off right-hander. stump. That he's done switch him. ये स्विच हिट से ना एक स्टोरी all of a sudden, जल्दी से I think all of a sudden both side becomes in play. अगर उधर भी पिच होके अगर लगता तब भी आउट था, इधर से भी आउट है। हम लोग ना यूएई में मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 का, तो पहले हम लोग 2 मैचेस जीत गए थे और अच्छे मार्जिन से जीते। तीसरा मैच था तो अब वार्नर और वॉटसन दोनों बड़े गुस्से में थे, तो रज़ा हसन लेफ्ट आर्म स्पिनर Yeah. वो आया बॉलिंग करने और उससे पहले सईद अजमल को भी मार पड़ चुकी थी। यू नेम इट, सारे बॉलर्स मार खा के खड़े हुए थे। अब वो आया तो मैं गया उसके बाद रज़ा हसन के पास, मैंने उसको कहा रज़ा घबराना नहीं है, ओ पाइन फिक्र ही ना करो, मामा अब टेंशन ही ना लो, है देखो मेरा ओवर है, एंज गया है ना, मैं खा पी जाना है। सैलकोट देना। हाँ, of course. ज्यादा लोर रहे है। लो जी ने पहला बॉल कराया चिक्का, मैं गया हूँ दूर देना, फिक्र ना करो मैं, दूसरा बॉल कराया छिक्का, तीसरा बॉल कराया छिक्का। अच्छा उसमें से एक आधा छिक्का उसने ये स्विच हिट भी मारी थी ना वार्नर ने। चौथी गेंद पे जब कराने लगा ना तो मेरे पास आ गया, 5 जल्दी नाल दसो की करना है। लेकिन नहीं उनका जो कर रहे हैं करिए। Now go swim on your own. All right, so this was the Australia-Afghanistan game. Once again, I think the Afghanistan team deserves another round of accolades before we sign off on their World Cup campaign. It wasn't a successful campaign, but ये जो आखिरी मैच अफगानिस्तान ने खेला है, इस पे बड़ी उनकी तारीफ करनी चाहिए। अगर ये कोलैप्स ना होता तो रिजल्ट आज बिल्कुल अलग होता है. They could have left this World Cup with a victory under their belt. Having said that, well done boys, and congratulations to all the Afghanistan fans, because I could see ground mein they were very, very happy. Even after the loss they were celebrating, and that's the way to do it. Celebrate, enjoy the game of cricket, and good luck to the Afghanistan team for the future. Now let's talk about the first game today. New Zealand won by 35 runs. ये मैच समरी आपकी स्क्रीन पे आ रही है. न्यूजीलैंड आयरलैंड का मैच है. न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 185 रन किए, 6 रन के नुकसान पे. उनके कप्तान ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली आज, 61 रन किए 35 गेंदों में, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, चुके ही वाज वरीड अबाउट इट. एलन वाज देयर, फिन एलन ऑफ कोर्स 32 रन्स, बट it was all round a great effort to put up that total by New Zealand. Ireland in response, they're good at chasing. Paul Sterling did come to the party for a bit, but really nothing special there. And the New Zealand bowling attack did really fantastic. That's how it ended up. It's 35 runs victory for New Zealand. Big margin victory again for New Zealand. So let's get back into that game. Wasim, ये जो मैच था, इसके अंदर we were anticipating Ireland ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, and it looked like that they were in the game, they were in it to win it. Yeah, they tried, but Kiwis were good enough. Congratulations to New Zealand team to qualify, the first team in this ICC T20I World Cup. And credit देना पड़ेगा न्यूजीलैंड क्रिकेट को. सिर्फ 4 के 5 मिलियन लोग हैं, probably little more. And उनकी रग्बी टीम देख लें, उनकी क्रिकेट टीम देख लें, and अभी तक 2015 से लेके अभी तक किसी भी ICC टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज में ये इन्होंने क्वालिफाई किया, एक दफ़ा मिस भी नहीं किया सेमीफाइनल. सो वेल डन गाइज, whoever running your sports, whoever the person or people are, congratulations to them as well. I mean, incredible the way they play the cricket or any other sport. They're very focused. And Skipper got runs today, 61 of 35. He looked good. He hit 3 massive sixes, strike rate to 174, and 185 was always too much for Ireland in my opinion. I think the highlight for Ireland was Josh Little. Yes. The hat-trick. Yep. Yeah, that was बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने हैट्रिक की है, बेहतरीन बॉलिंग की है. पहली में अपन ने की थी और इनकी दूसरी हैट्रिक है. जी हाँ, it's very blunt. Waqar, where can Ireland improve? Because there is clearly the potential is there, but there are small gaps in the team. Where all do you think those gaps can be plugged? आई थिंक उनकी बैटिंग में जो है ना वो फ्लॉज हैं. उनके 1-2 बैट्समैन ही हैं. स्टर्लिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता है, कप्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता है.
एंड देन वही बात आ जाती है ना कि जब एसोसिएट्स जब टीम है, जब ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलती हैं, तो वो फिर प्रेशर जब बिल्ड होता है और जब जब उनको ये फीलिंग आती है कि ये मैच जीत सकते हैं, दैट्स वेयर दे क्रम्बल. सो दैट्स व्हाट दे नीड टू इम्प्रूव ऑन. और वो उसी तरीके से इम्प्रूव होगा जब आप ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे. मोर यू प्ले the better you will become, and I don't think they play enough cricket. They hardly play any T20 cricket, so I still feel that they've really done well in this tournament, coming from the bottom all the way up to this stage, and they have threatened teams but couldn't really manage to go forward. Right. New Zealand have been doing really well in the last couple of years, Shoaib. They've been semi-finalists, finalists, winner of the Test series. They've really done well for themselves. World Test champions. World Test champions, yes, and been बड़ी अच्छी इनकी performance रही है. मगर finalists तो semi-finalists तो बन जाते हैं. Quite not getting there. किस्मत इनका साथ नहीं दे रही. क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल. और मुझे ये लगता है कि उनके पास भी ना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट वो एक तरह से उनको एडवांटेज भी है कि उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं आती. बहुत सारे प्लेयर्स नहीं ऐसे आ जाते. आई एम श्योर उनके पास बहुत टैलेंट है वहाँ पे, और यही उनका सक्सेस भी है. और दूसरी अच्छी चीज़ उनमें ये है कि जब वो हारते भी हैं तो पैनिक नहीं करते, क्योंकि पैनिक करके ना काम रहते हैं, क्योंकि काम रह के ही आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं. और यही उनकी वजह है सक्सेस की भी. और अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो मैं न्यूजीलैंड को चाहता हूँ कि वो ये वर्ल्ड कप खेलें और जीते. 100%. I am with the Black Caps as well. They have all the resources. Yes. We look at the conditions. उनको ये सूट करती हैं. उन्होंने सारे वेन्यूज़ पे खेला है और उनके पास मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो आपको एक जो बेस्ट चीज़ की है इस वर्ल्ड की, बेस्ट तो नहीं कह सकता, पर उनकी स्ट्रेटजी थी कि सिर्फ 5 बॉलर यूज़ किए अभी तक इन देयर इनिंग बॉलिंग. छठा बॉलर है भी है, जेनीशम भी कर सकता है, जो भी है वो किसी को नहीं दिया. वो 5 के 5 बॉलर अपने कोटा खत्म करते हैं. वो वसीम में बहुत स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन है केन विलियमसन. वो छठा बॉलर या 7वां तब लेके आता है जब उसके 5 मार खा के खड़े हों या पार्टनरशिप कहीं लग गई हो. तो वो ऐसी चीज़ तब लेके आता है कि जब उसको ज़रूरत पड़ेगी. यार नहीं, अब मेरे जो सारे रिसोर्सेज थे, बेस्ट रिसोर्सेज, उनको मैंने यूटिलाइज़ किया लेकिन मुझे विकेट नहीं मिल पा रही है. फिर वो छठा या 7वां लेके आता है ओवर. तो आई गेस छठा या 7वां बॉलर लेके आता है. आई एम श्योर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई उनके किसी जैसे नॉकआउट में, वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, बिग कॉन्ग्रेट्स टू देम. लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई, आई एम श्योर विल बी एबल टू सी द 6th और 7th नॉन रेगुलर बॉलर विल बी बॉलिंग. केन विलियमसन बड़ी आज फॉर्म में नजर आए हैं इस बार. गुड इनिंग्स बाय हिम. न्यूजीलैंड मस्ट बी रियली हैप्पी कि बड़ा ज़बरदस्त उनका कमबैक हुआ है. बहुत ज़बरदस्त इनिंग, स्पेशली जो स्ट्रगल कर रहे थे स्ट्राइक रेट और वो रोटेशन नहीं हो रही थी उस तरीके से, वो स्पेशली वो मोमेंटम नहीं बना के दे सक रहे थे टीम को. तो आई थिंक टुडे वाज द डे. हालांकि पिच थोड़ी स्लो थी, बट अगेन आई मीन उसने बड़ा ज़बरदस्त यूटिलाइज़ किया उन गैप्स को, अपने एरियाज़ पिक किए. और स्पेशली केन विलियमसन की ये फेवरेट शॉट है, ये टांग रख के मारते हैं ओवर स्केयर लेग या मिड विकेट. तो आई थिंक दैट इज़ हिज एरिया, और उसने आज उसको यूटिलाइज़ किया. और जिस तरीके से गैप्स में खेला है स्पिनर्स को, दैट वाज फिनोमिनल. और आई थिंक एक और बॉक्स टिक किया उन्होंने बिफोर गोइंग इनटू द बिग सेमीज, कि वो इन फॉर्म हो गए और उन्होंने रन्स किए हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट पे किए हैं, जो कि वो पिछले मैचों में मिस कर रहे थे. वकार. आई थिंक केन विलियमसन ने रियलाइज़ किया है पिछले दो मैचों में नहीं, बल्कि इवन जब न्यूजीलैंड में भी रिसेंटली हम खेल रहे थे, तो इनका स्ट्राइक रेट पे बहुत सारी डिबेट और कि जी इज़ नॉट रियली पुशिंग द गेम, इज़ नॉट रियली, जिस तरह का स्टार्ट मिलता है उसको ये स्लो डाउन कर देते हैं. तो आई थिंक ही स्टार्टेड फीलिंग हिमसेल्फ. आज जिस तरीके से या जिस अग्रेशन के साथ वो खेल रहे थे, ही स्टार्टेड हिमसेल्फ फीलिंग कि हाँ यार ऐसा हो रहा है. सो आई कांट टेक टू मेनी डिलीवरीज. आगे जब बड़ी टीमें आएंगी तो मुझे जो भी रन रेट हम शुरू करेंगे या हमें स्टार्ट अच्छा मिलता है तो हमें उसके साथ आई हैव टू कीप अप विद इट. सो इट वाज अ वंडरफुल नॉक. येस, थोड़ी सी वीक बॉलिंग ज़रूर थी उनके ऑपोजिशन की, लेकिन ये था कि जब बल्ले में बॉल आता है तो देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट हिमसेल्फ. ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन एंड आई एम श्योर दिस नॉक ऑफ हिज जो कि 174 का स्ट्राइक रेट है विल रियली डू हिम गुड. दैट ग्राफ अभी जो आया था, दैट शोड कि वेयर जिस पर सेट इसका स्ट्रांग एरिया कौन सा है.
So 25 runs were scored there between That- mid wicket and square leg. एक चीज और अच्छी थी कि आज देखें उनके जो ओपनर्स थे उनकी पार्टनरशिप लगी थी। फर्स्ट विकेट 52 रन्स पे जाके गिरी। तो जब ऐसा होता है तो नंबर 3 वाले के लिए आसान हो जाता है खेलना, आपको मोमेंटम मिलता है जाके। बॉलर्स जो है वो थोड़ी मार खा के खड़े होते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। और अगर हम देखें जो उन्होंने आज 3 छक्के भी मारे, वो भी उनके लिए ये वेन्यू सूट करता था क्योंकि ये पावर हिटर नहीं है वो, लेकिन उन साइड बाउंड्रीज छोटी थी तो यूटिलाइजेशन ऑफ द शॉर्ट बाउंड्रीज वर एक्सीलेंट बाय हिम। तो आई गेस असेसिंग द कंडीशंस में ये आ जाता है, जिस तरह आज उन्होंने असेस किया कि ये मुझे सूट करता है मेरे गेम को, आज मेरी जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए जो टीम को फ़ायदा दे एंड ऑफ द डे। और असेसिंग द सिचुएशन भी बड़ा है। यानी नॉर्मली पिछली गेम में जब उन्होंने रन बॉल किया था तो कॉनवे उस टाइम जो है वो एज एन एग्रेसर खेल रहे थे और उनकी शॉटें लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि ओके फाइन आप खेलो। आज कॉनवे स्ट्रगल कर रहा था, वो 33 बॉल्स पे 28 रन थे। विलियमसन आया तो उसने वो रोल लिया कि ठीक है, इफ़ यू आर नॉट हिटिंग बाउंड्रीज देन आई विल गो फॉर दैट। सो एक कम्प्लीमेंट करते हैं, रोल बदलते रहते हैं। आप ऑन एंड ऑफ देखेंगे तो इनकी ऐसी इनिंग्स आती हैं कि सडनली फ्रॉम 100 स्ट्राइक रेट एक 150 के स्ट्राइक रेट पे एक इनिंग खेलेंगे। फाइनल में भी खेली है वहाँ न्यूजीलैंड में, तो आई थिंक दैट्स समथिंग गुड। और एक्सपीरियंस आप बताते हैं प्लेयर कि वो सिचुएशन के मुताबिक डिफरेंट खेलता है। All right, with that, it's time for another break right here on the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports and Sports. We'll see you after these messages. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching Sports 10 Sports and the Airwise app. थोड़े से जो ना, चूँकि वो टूर्नामेंट के आखिर में आ रहे हैं ना वर्ल्ड कप के, तो हम लोग भी थोड़े से कंप्लेसेंट होते जा रहे हैं, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। विद मी इन द पवेलियन आई हैव गॉट द लेजेंड्स, आई हैव गॉट शोएब बालिक, आई हैव गॉट मिस पाउल हक, वकार यूनिस एंड वसीम अकरम। हाँ, जो हमारे पीछे बैठे हैं वो भी सुते हुए ने सारी कोई बत्ती बाल दे, कोई दे दे काउंटडाउन दे दे 5 4 3 2 1 गाइस कम ऑन। वो मेरे कान में काउंटडाउन तो आ रही है। नॉर्मली इधर म्यूजिक बजता है, हाँ। म्यूजिक नहीं बजा, इसीलिए तो मलिक थोड़ी आंकड़ा ले रहा है, पता नहीं चला। वो आंकड़ा इसलिए ले रहा हूँ, सीधा इसी की हवा यहाँ आ रही है। मैं मांग रहा था ब्लैंकेट। Guys, it has been a month almost. It's an honor to work with Shoaib being a present player, but every 5 minutes इसकी शिकायत आती है ठंड बड़ी है। हाँ, बहुत वसीम भाई सीधी हवा यहाँ आ रही है। यहाँ एक दिन विकी भाई बैठे थे ना जब मैं दुबई गया था, विकी भाई कहते ने 3-4 कंबल ले आ दो। मतलब इस चेयर पे we are within the vicinity of a few feet. I don't understand. कल से मैं इसके साथ ये तब्दील कर लूँगा। आप तब्दील कर लेंगे उसमें? या अगर आप तब्दील करेंगे तो थैंक यू, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं ना को थोड़ा मास ले लाऊंगा। चलिए भाई ने जब मैं की जवाब दूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चले यार, जरा कोई दो मेनू को 8 शीट दो मेनू के। सर जल्दी करें सर, नहीं, लेकिन वो stats भी मारनी पढ़ने है, हैं। खानी नहीं है। अच्छा जनाब, सूरत हाल यूँ है कि पहले तो चलते हैं जॉश लिटिल की बॉलिंग की तरफ। वसीम, यू वर टॉकिंग अबाउट हिज हैट्रिक की, आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है आज, एंड दिस इज हिज हैट्रिक कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन। दैट्स द फर्स्ट विकेट ही टुक, नाइस कैच। Brilliant ball. Excellent ball. Excellent ball. Excellent ball. Just perfect length, जहाँ पे ना आगे जाया जा सकता है ना पीछे जाया जा सकता है। और नीशम के कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि नीशम इज़ अ गुड बैट्समैन। उसने भी रन नहीं किए, शुरू के एक आधे मैच में रन किए, उसके बाद ये दूसरा गालिबन डक है, या पिछले मैच में 1 रन किया था। तो जो लेंथ थी ना बॉल की, एंड टारगेटिंग द स्टंप एंड गुड पेस, दैट्स व्हाट आई रियली एंजॉयड। पहला चले वो बड़ी हिट मारते हुए विकेट उनको मिल गई, बट नेक्स्ट 2 deliveries, you know, congratulations to him. He's bowled really well throughout the tournament. I mean, not only this hat-trick, but just generally भी इनकी बॉलिंग को देखने का बहुत मजा आया। Yeah, बहुत ज़बरदस्त हुई। And with that, it's time for the way forward, brought to you by Bank Al Falah. Wasim, let me bring this to you. What should be the way forward now that New Zealand have qualified for this semi-final? Yes. क्या अब उनका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगले 2 मैचेस के लिए? जस्ट जैसे खेल रहे हैं वैसे क्रिकेट खेलें, एंड डोंट डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। Just be yourself. And Kiwi, New Zealanders, they're very easygoing, very relaxed, and I'm sure they're going to take a couple of days off, maybe play golf, have a team get together. Because practice अब तो होगी ना पूरे वर्ल्ड कप में, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर जाएंगे भी तो just they probably go and do a little bit of fielding, that's it.
All right, then that's the way forward. Brought to you by Bank Al-Falah. All right, and with that, it's time to move on to Ask the Pavilion. ये हैशटैग देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, हैशटैग Ask the Pavilion. आप देख सकते हैं, this is right here, हैशटैग Ask the Pavilion. और आपके सवालात का सिलसिला जो है वो हम शुरू करते हैं अब, ताकि आप लोगों के बहुत से जो सवालात हैं उनके जवाबात अपने पेरेंट्स से, सॉरी मैं ज़रा खोल लूँ, हैशटैग आ गया जनाब, मुबारक हो. All right, so first random question coming up. For Misbah sir, in your opinion, who is better player, Mohammad Hafiz or Shoaib Malik? ये बिल्कुल आए. Typo आपका नाम है, Typo TIME6ES4 times, sorry, Typo times 4. इनका सवाल है मिसबाह उल हक आपसे. ये कौन सा सवाल है? It's right there. It's the first question right on top. आई थिंक एक तो कंपैरिजन करना नहीं चाहिए. ठीक है. एक मोस्टली टॉप ऑर्डर में खेला है और दूसरा मिडिल ऑर्डर में खेला है, तो बोथ आर एज इफेक्टिव अपने अपने नंबर्स पे. एज एन ऑलराउंडर मेरे ख्याल में दोनों की जो परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए वो ज़बरदस्त हैं. तो एक ही नंबर पे अगर नंबर 5 पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो नंबर 5 के बैट्समैन के साथ तो आपका कंपैरिजन हो सकता है. ये नहीं हो सकता कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के साथ आपके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन का कंपैरिजन हो. तो इक्वली मेरे ख्याल में अपनी अपनी जगह पे दोनों ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त सर्व किया और परफॉर्मेंसेस हैं उनकी. बैटी कल्सी का सवाल है. बैटी कल्सी पूछती है आज पवेलियन में फ्रॉम वसीम. इन माई व्यूइंग पीरियड विच इज़ एज लॉन्ग एज योर प्लेइंग पीरियड, सलीम मलिक वॉज द ओरिजिनल फिनिशर ऑफ ODIs, won some unbelievable matches. Since finisher term didn't exist then, nobody named him that. Do you agree? If not, who was or is better than him? 100% agree with you, Betty. Apparently he's a guy, but it's fine. Salim Malik एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे. One of the few who played 100 test matches. I remember his one of the famous innings, 87 tour पे Calcutta against India, where he won Pakistan, he got 70 or not out, where he won us a game from nowhere. India were cruising, we were losing wickets, but he just won us a game. One of the best players against spin bowling and an amazing cricketing mind. He was a great help to me as a captain, because my go-to guy was him if I had to ask any cricketing decision. So, all right, fantastic. Well done, Malik Saab. That's right. Rohan Pramod Manur, आपका सवाल है. Huge fan of the Sirs, Wasim, Waqar, Shoaib, Misbah. Do you think with the evolution of T20 format, the beauty of Test and ODI cricket has been majorly impacted? Quality of cricket has been majorly affected. Truly admire your show, Palam B3. Great vibes. Regards from India. Thank you very much for your question. It's open for all of us to discuss. Gentlemen. Waqar, let's start with you. Ask the question, please. Again. Okay. So, Rohan Pramod Panor ka sawal hai, do you think that the evolution of T20 format has spoiled the beauty of Tests and ODI cricket has been majorly impacted because of that? The quality of the game has changed and is majorly affected. Do you agree? Do you don't agree? To an extent, I agree. The old classical Test match cricket has changed now. Now it is fast-moving Test match cricket, okay, which is good in a way. पहले टेस्ट मैचेस जाते थे 5-5 दिन. अब तो चौथे दिन भी चला जाए तो प्लेयर्स भी तंग होते हैं और देखने वाले भी तंग होते हैं. क्रिकेट इज़ अलाइव स्टिल इन इंग्लैंड. पीपल लव इट देयर. ऑस्ट्रेलिया भी देयर आर वेरी फ्यू. इंडिया दे लव इट. पाकिस्तान में भी इफ यू प्ले इन अ स्मॉलर सेंटर्स दैट स्टिल पीपल आर. आई लव टेस्ट मैच क्रिकेट. इफ यू आस्क मी ऑल फॉर्मेट विच वन आई वांट टू टॉक अबाउट, विच आई वांट टू work on or play, Test match cricket is ultimate for me. Yes, it has done a little bit, but that's a two different format. अगले आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि वो totally different set of teams, maybe different set of coaches, हर चीज़ separate हुआ. Totally, everything will be different. All right. सैफुल्लाह खान मरवत का सवाल आया है. मिसबाह आपसे है उनका सवाल. सैफुल्लाह खान मरवत पूछते हैं, question for Misbah ul Haq. You were one of the few batsmen who could hit straight sixes at will. We have seen that too towards the end of your career. Yet you chose to bat generally slow despite so much criticism. What was the reason? I think the reason at that time वो आपके सामने है कि उस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह की डिमांड करती थी. नॉर्मली जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे कि स्कोर आपका हुआ है
यू नीड टू बेसिकली एक्सेलरेट, तो डिफरेंट आप माइंडसेट के साथ खेलते हैं। और जब आपकी टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो और आपके 10 स्कोर या 15 स्कोर पे 3 आउट हो जाते हैं, दैन यू हैव टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द बेसिकली टीम्स रिक्वायरमेंट। तो कोई इस किस्म की सिचुएशंस में ऑब्वियसली आई हैव टू, और आई थिंक कि थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि आप बेसिकली किस टाइम पे खेल रहे हैं और आपकी टीम की ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है, कौन आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ क्या है और कितना स्कोर आप डिफेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में उस वजह से भी शायद उसमें चेंज आया। ऑलराइट जनाब, अहमद इदरीस का सवाल है फ्रॉम द लेजेंड्स वसीम एंड वकार। आई एम इन ऑस्ट्रेलिया नाउअडेज फॉर द वर्ल्ड कप। Nice. Any recommendations for sightseeing and must-check spots? He narrowed it down. It's a continent. It's a huge place. So I don't know आप ऑस्ट्रेलिया में हैं कहाँ पे, फिर उस तरीके से आपको बता सकते हैं हम। We don't know which city you're in. काफ़ी सारी जगह का तो आपने बताया कि वहाँ की स्पेशलिटीज़ क्या हैं। Yeah, I've been lots of places and I explore when I go, especially the food places. चलिए जहाँ पे भी है वो डजेंट मैटर, आप बता दें कुछ वैसे ही बता दें रैंडम की। I suppose if you are right now, पाकिस्तान का next match हमारा कहाँ पे है? Probably he's there. Adelaide is beautiful. I think it's a Rundle Street, just one of the famous main street. All the top restaurants are there. And then if you want to go on the beach, it's about 20 minutes drive from the CBD, as they call it. They don't call it city center. They call it CBD. From there, it's about 20 minutes ride. And yeah, go have fun. Food is the best in the world in Australia. Even छोटे से ढाबे पे भी जाओगे खाना आपको फ्रेश मिलेगा। All right, Janab. Sumit, Dr. Indiana, Sumit has sent in a question. Sumit, आप कहते हैं big fan of Alam B3. Thank you very much. Hosting one of the best. A fun rapid fire for me. Identify first cricketer to hit a 6 in a T20 cricket. He's sitting on my right, Wasim Akram. Did I? Fastest 50 in Test record holder is also sitting on my right, Misbah-ul Haq. First cricketer to play 100 T20Is sitting on my left, Shoaib Malik. And the only cricketer to take 3 consecutive ODI fivers is also sitting on my left, Waqar. Younis, I hope you enjoyed your rapid fire questions. I bet you must have messaged Mazhar privately to send you the answers. Why would you say रट्टे देख के बगैर हम आंसर दे दिए? Am I right? यार आप पता नहीं क्यों खालपा पे हर चीज पे शक करते हैं। अगर कोई भी इसमें से गलत है तो ये मजर नहीं बताए, और अगर ये सही है तो ये मैं था सारा। But thank you for your message, Sumit. We're going to take a break right here, but you got this Ask the Pavilion hashtag right here. Send us your questions. We'll answer them right after these messages. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching Sports 10 Sports and the Airwise app. And Ask the Pavilion के सवालात का सिलसिला जारी है. And we're going to take another question that I have. This one is for Waqar and Misbah. It's come from Walter White. Question for Waqar sir and Misbah sir. What were your and team's feelings playing the test match against New Zealand in Sharjah day after the death of Phil Hughes in 2014? And were the bowlers hesitant to bowl bouncers in that match? Misbah, Waqar, this is for you. Look, we were not playing in that game, but I remember what happened. It was a very sad day. एक दिन मिस किया था, अगला दिन अब मैच नहीं हुआ था, एक ब्रेक ले ली गई थी उस दिन की, and it was very sad day, you know, to be very honest. और खेल I don't know what exactly was wrong, but then we played that match and we lost that game actually. Because nothing was going right. Mentally nobody was there, and I don't really remember के bouncer का क्या था हुए या नहीं हुए, लेकिन I remember they haven't bowled a single bouncer जब ये इंसिडेंट हुआ है सेम टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने एक भी बाउंसर नहीं, बट एक चीज कोई कैचिंग के फील्डर भी नहीं लिया। एक चीज मुझे वो वाला उन्होंने कहा कि लेट्स जस्ट टेक दिस आउट ऑफ द गेम। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, ब्रेंडन मैकलम नहीं खेलना चाहते थे वो टेस्ट मैच, वो ख़त्म करना चाहते थे, बट देन बिकॉज टेस्ट मैच हुआ एंड ही केम इनटू बैट एंड ही स्कोर्ड अ डबल 100 Right. And he hit some serious sixes. गुस्से में उसने मार के बुरा हाल कर दिया था. He played really well that day.
That was the ऑलराइट जनाब, आसिम का पैगाम है, आसिम ZX। उन्होंने लिखा है कि मेरी बेगम आप सबसे बहुत जेलस होती हैं क्योंकि मैं टी टाइम पे बहुत शौक से आपका शो देखता हूँ। Secondly, please share the moment when Wasim bhai and Waqar bhai were bowling against Sri Lanka, having 299 and 399 wickets, and there was only 1 wicket left in the innings. पहले सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, दूसरे का वसीम भाई दे देंगे। पहले का मैं ये दे देता हूँ कि भाई अगर प्रॉब्लम हो रही है घर पे तो ना देखो शो, क्योंकि घर ज़्यादा ज़रूरी है शो से। अगर बेगम नाराज़ होगी और फिर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी, तो मेरी तो मशवरा यही है कि देख ले फिर, या फिर चोरी देख ले। ये आप उनको एडवाइस दे रहे हैं। ये एक्चुअली एक्सपीरियंस से आया है, सो ये बात सुन लो। बहुत एक्सपीरियंस से विकी ने बात की। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे तो याद भी नहीं है कि ये सिचुएशन थी, मेरा नहीं ख्याल इसको भी याद होनी है। पर ऑब्वियसली जब मैं आई वाज ऑन 399 एंड आई थिंक आई हैव गॉट द विकेट। तो तेरा आपका भी उसी में हुआ था 300 विकेट्स? Same game in Sri Lanka. Yeah, the same test match. Same test. Oh, wow, I mean, I never knew that. I was concentrating on mine. So probably. I remember. I think Mohammad Wasim took the catch and Russell Arden was the fielder. And I remember I got 70 runs. It was very very hot. बड़ी गर्मी होती है श्रीलंका में, so मैंने 70-72 करके आउट हुआ और स्ट्रेट अवे बॉलिंग आ गई। वो था भी लास्ट एन आवर और सो, तो मैं वो हाफ स्पाइक्स मैंने तो उन्हीं में चला गया। मैं क्या स्पाइक्स नहीं पहन रहा मैं। सो आई यूजुअली यूज्ड टू बॉल इन हाफ स्पाइक्स, मुझे फ़र्क ना पड़ता। वकार, शोएब अख्तर, ऐसे बॉलर्स को फ़र्क पड़ता था। स्पाइक्स इनके पूरे और नेल्स पूरे होने चाहिए, थोड़े वो यूज़ करके थोड़े रगड़े जाते हैं ना, वो भी नहीं। ये ब्रांड न्यू यूज़ करते थे आप मोस्टली। ऑलराइट, जवाद लड्डू का सवाल है। जवाद लड्डू कहते हैं, शुड वी पार्ट वेज विद द कोचिंग स्टाफ आफ्टर दिस वर्ल्ड कप रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट? Misbah? who we are to decide. No, you can give your suggestion or opinion. Very very difficult. Being वो दोनों देख के देख ली थी। सिंपल, जब आप कहीं पे होते हैं और वो एक जगह पे हम एज कोचेस काम कर चुके हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट कमेंट ऑन दैट। सो आई डोंट जस्ट वांट टू कमेंट ऑन दैट। Fair enough. आपने तो वही वो उस वाली बात की ना, शॉन टेट वाली, when they lose you send me for the press conference. That was funny. That was very funny. That was really आपने funny. वो किया। जीशान का सवाल है शोएब मलिक आपसे कि हाउ मेनी इयर्स आर यू स्टिल गोइंग टू प्ले क्रिकेट? कितने साल और क्रिकेट खेलेंगे आप? जब तक मैं क्रिकेट एंजॉय कर रहा हूँ, जब तक मुझे कैप्टन को छुपाना नहीं पड़ रहा फील्डिंग में, और जब तक मेरी जो भी परफॉर्मेंस हो वो टीम को फ़ायदा दे एंड ऑफ द डे, तब तक मैं कोशिश करूँगा खेलने की इंशाल्लाह। मैं सोच रहा था कहेगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तब तक और जब तक है जान में जान। मुझे कोई और काम ही नहीं आता ना वसीम भाई, so why not? तो ये अच्छा खासा तो कर रहा है, तो Why not? Now you're doing a great job. You're doing a great job. I have a question from Bring It On with triple N, not with one N. Oh dear. Question to Wasim, Akram, or all of us basically. Why do events like World Cups do not have alternative days for rain washout matches? They can eliminate the deserving teams. अगर यार ऐसा करेंगे तो फिर 3-3 महीने एक वर्ल्ड कप चलेगा, आई सपोज। दिस इज फॉर एवरीवन। ये रूल्स जो पहले बने हुए हैं, ये टाइमिंग लॉजिस्टिकली भी बड़ा मुश्किल है। सो मे बी दैट्स व्हाई वी नीड दिस T20 फॉर्मेट। जैसे शॉर्ट एंड स्वीट एंड एंटरटेनिंग है, वर्ल्ड कप भी शॉर्ट एंड स्वीट एंटरटेनिंग होना चाहिए। Maybe semi-finals, final, I think reserve day maybe होता है। उस पे आप रख लें, otherwise I think it'll be too long. फाइनल पे तो है ये भी रिजर्व। कर सकते हैं, जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में होता है प्ले ऑफ, जो पहले 2 नंबरों पे फिनिश करती हैं टीम्स, उनको एडवांटेज होना चाहिए, जैसे कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में, तो ये भी देखा जा सकता है। एलिमिनेटर्स वर्ल्ड इंफॉर्मेशन की तरफ से सवाल है कि जब शोएब अख्तर 150 पे बॉलिंग करते थे तब बहुत ज़्यादा डेडली लगते थे। आजकल के बॉलर जब 150 पे बॉल करते हैं तो इतने डेडली क्यों नहीं लगते? डेडली भाईजान जाग जाओ। नहीं मैं जाग रहे हैं। तो आपको ऐसे लगा जैसे आपको मुंह से डर्टी निकला है।
डेडली डेडली ओके कुछ आपके दिमाग में तो नहीं चल रहा था उस दिन? नहीं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लिसन क्योंकि आगे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था जो मैंने अब क्वेश्चन आपको रिपीट उस करवाया दिन क्या कहा था मुझे आपने कि रैंडम क्वेश्चन में समझ आया कितना मुश्किल काम में गए थे पढ़ना मैं तो कहता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता जो आप करते हो। यू आर द बेस्ट इन दैट ब्रदर, टू बी ऑनेस्ट। प्लीज सो एक्चुअली आई मीन आई थिंक द ऑब्जर्वेशन इज कि वो 150 वाले जो थे बड़े तेज लगते थे, अब जो है वो क्या वजह है? उसके दो रीजंस हैं। एक तो रीज़न ये है कि वो ही यूज्ड टू रन फ्रॉम फार, यू नो, तो एक टेरर सा आप बैट्समैन पे डाल देते हो, देखने वाले को भी एक लगता है कि पता नहीं क्या, यू नो, इज कमिंग रियली हार्ड एंड पुटिंग इन ऑल हिज एफर्ट। एक चीज़ दूसरी ये है कि उसका जो साइडवेज एक्शन था, इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक द बॉल। मैंने नेट में भी खेला, आप लोगों ने सब में भी खेला, मुझे तो खैर इतनी नज़र भी नहीं आती थी बॉल उसकी। सो ही वाज रियली क्विक। और जब आप 150 टच करते हैं ना, या 148 भी मैं कहूँगा, उसके बाद जो एक किलोमीटर्स है ना, वो लिटरली वो ऐसे ही होता है जैसे किसी ने शूट किया बॉल, यू नो। तो he used to touch 156, 157, 160 तो किया ही उसने। 95, 96 से स्टार्ट होते थे। हाँ, so he was really quick and he was hard to pick with that action. Yeah, I have a question. It's the action that basically did that, right? For Shoaib Malik from Muhammad Hamad, to question to all the panelists, especially Shoaib Malik as he's a current player, why we lack knowledge of match rules, like if the balls hit the stumps on a free hit, it ain't a dead ball. Second question, use of crease by bowlers has disappeared completely. Any reason for that? अब मुझे ये लगता है कि इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्लेयर कि आप जैसे ही रूल्स जब नए आते हैं तो आपको वो पढ़ने चाहिए, और ताकि आपको अवेयरनेस रहे टुवर्ड्स द गेम। इट्स नॉट जस्ट किस बुकलेट होती होगी ना रूल्स की, इंग्लिश में होती है। वैसे वसीम भाई वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन आवर सेल फोन, ठीक है, तो बहुत इजी है कि आप आईसीसी की उस पे चले जाएं, वेबसाइट पे चले जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप वहाँ पे रूल्स पढ़ लें। वैसे भी आपको रूल्स मिलते हैं। चेंज ऑफ रूल जब भी होता है तो वो आपको आके बताते हैं, जब भी आपकी मैच रेफरी के साथ मीटिंग होती है तो वो आपको बताते हैं। लेकिन वो सिर्फ मैनेजर के साथ नहीं बैठता, वो तो कप्तान और मैनेजर, लेकिन वो कैप्टन और कोच जो भी कोई रूल चेंज हो जाता है तो वो टीम मीटिंग में सबसे पहले आप वो जाके डिस्कस करते हैं। लेकिन वो बहुत बेसिक वाले बताते हैं, क्योंकि आप ऑलमोस्ट मैच पे जा रहे होते हैं, जिस वजह से वो आपको बहुत बेसिक वाली जो चीज़ें बताते हैं। लेकिन ये रूल्स ऐसे हैं कि ये अब आपको जैसे ही चेंज होते हैं, न्यू अमेंडमेंट होती है जब रूल्स में, तो आपको खुद प्लेयर को, और अगर इंग्लिश में है तो आप जो है समझ लें, आपके पास एनालिस्ट है, तो ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और चीज़ है कि ये रूल्स जस्ट सडनली नहीं चेंज कर देते। ये नहीं करते कि जी आज रूल आया तो जी 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या हफ्ते बाद। दे विल टेल यू कि जी अगर अभी नवंबर में आया तो दिल से कि जी ये रूल जो है ये फरवरी में इम्प्लीमेंट होगा, तो वो आपको दे गिव यू इनफ टाइम टू सॉर्ट ऑफ रीड इट। वो इशू कर देते हैं, बट जैसे कि आपको महीना 2 महीने देते हैं, सो अंडरस्टैंड। अगर किसी ने नहीं पढ़ा या कोई मिस कर गया तो इट्स इंडिविजुअल्स रिस्पांसिबिलिटी, एंड देन ऑफ कोर्स इट्स अ मैनेजमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। That's why manager and such a huge sports staff is there to tell the boys before any tournament, sit down कि भी ये लॉ बदल रहा है, ये नया लॉ है। सारे तो दोबारा नहीं बताने होते, एक आधा लॉ ही चेंज होता है। Right. मुख्तार हसन का सवाल है, this is the last question we'll take before we head into the break, and this is from Shoaib Malik. शोएब भाई, क्या आप, मुख्तार हसन पूछ रहे हैं आपसे, शोएब भाई क्या आप इस बार भी पेशावर ज़ल्मी से ही खेलेंगे? मुख्तार, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेयर्स के हाथ में नहीं ये चीज़ होती। जैसे सॉकर की फॉर्मेशन है, या अगर किसी ने ट्रेड करना हो किसी टीम ने किसी टीम के साथ, तो आई गेस इट्स अप टू देम। जब एक दफ़ा वो फाइनलाइज हो जाए, फिर वो जो बॉल है वो प्लेयर के कोर्ट में आता है, बट आई हैव बीन इंजॉइंग अ लॉट प्लेइंग फॉर ज़ल्मी, और मेरी पर्सनल ख्वाहिश ये है कि मैं ज़ल्मी की टीम से खेलूँ। एक्सीलेंट। बिफोर वी गो टू अ ब्रेक, लेट मी क्विक वन। पिछले 3-4 दिनों से जब PSL के ड्राफ्ट का अनाउंस हुआ है, सब कुछ अनाउंस हुआ, कराची किंग्स बड़ा वो कर रही थी ट्रेंड। सो आई लुक्ड, अभी हमें नहीं पता हमने क्या करना है। वी डोंट नो व्हाट वी गोइंग टू डू। बाबर जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है। सो फेक न्यूज़ पे प्लीज़ बिलीव ना करें। बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि अभी हमें भी नहीं पता कि हमने क्या करना है। ब्रेक लेनी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
All right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We are right now in Ask the Pavilion, taking your questions and answering them. एक जो सवाल है वो आज बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो हमारे स्टैट करते हैं मज़हर अरशद, उनकी तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया है। वो सारे पैनलिस्ट से मैं ये करूँगा। उन्होंने ये सवाल दिया कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का विमेंस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की आयरलैंड क्रिकेट टीम की ख़वातीन की क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। द लार्जेस्ट टोटल एवर पुट अप हमारी जो दोनों ख़वातीन ओपनर्स थी, उन्होंने दोनों ने सेंचुरीज़ जो है वो स्कोर की और 300 से ऊपर का टारगेट जो है वो आयरलैंड की टीम को दिया। और जो बिस्मा मारूफ है, जो हमारी कप्तान है विमेंस क्रिकेट टीम की, उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन सैक्रिफाइस की और दूसरों को जो है वो जाने दिया। तो मज़हर अरशद का ये सवाल है कि अगर हमारी ख़वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान जो है वो ये कर सकती हैं, तो क्या ये एग्जाम्पल नहीं है हमारे पाकिस्तान की जो मेन मर्दों की टीम है उसके लिए? मिसबा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मज़हर समझते हैं कि शायद कोई वहाँ पे ऐसी सोच है, कोई नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल में नंबर 3 पे अगर आपकी पार्टनरशिप है, चाहे वो आपका कप्तान है या कोई भी है, और आपके एंड के ओवर्स या मिडिल के ओवर्स चले गए हैं और आप समझते हैं कि कोई दूसरा बैट्समैन जाके ज़्यादा रन्स कर सकता है इस हवाले से, तो ज़रूर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट वकार, First of all, congratulations to our girls. Yeah. Well done, very very well done. And देखिए, सेक्रीफाइस करने से ही टीमें बनती हैं। जब आप सेक्रीफाइस करते हैं एज अ लीडर, आप जब सेक्रीफाइस करते हैं और करना आपको आता होता है, तो देन आई थिंक चीज़ें बदलती हैं, किस्मतें बदलती हैं, आपकी इज़्ज़त बढ़ती है। तो बिस्मा must congratulate you on the performances of the team and as a captain also. ऑलराइट, ओके। टीम का मकसद ही है सेक्रीफाइस। टीम गेम जहाँ आएगी सबसे पहले सेक्रीफाइस वर्ड जो है वो लगेगा। जो जिस प्लेयर को वो करना आता है उसको हमेशा सबके आगे रखना चाहिए। ऑलराइट जनाब, रफ़ई कमरुज़्ज़मान का सवाल है मिसबाह हक आपसे, और वो थोड़ी सी टिप्स आपसे मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई एम अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड आई यूजुअली प्ले अ रिवर्स स्वीप अगेंस्ट रिस्ट स्पिनर्स, द बॉल इज टर्निंग अवे फ्रॉम मी। In ODI cricket, do you suggest I take this risk before I've crossed 50, or can also try this early on in the innings? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उसमें। ऑब्वियसली आपने जब भी खेलनी है तो बिफोर जस्ट गोइंग इनटू द गेम और वहाँ पे अप्लाई करने के, आप एक तो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा आपने किया, फिर आप कोशिश करते हैं कि कंपेरेटिव मैचेस, यानी कोई टूर्नामेंट है या कहीं आप फर्स्ट क्लास या वनडे कहीं खेल रहे हैं, उससे पहले आप प्रैक्टिस मैचेस में उसकी कोशिश करते हैं। जब आप 100% श्योर हो जाएं कि हाँ अब मेरा कॉन्फिडेंस भी ठीक है, मेरी टेक्निक भी ठीक है, मेरा प्रोसेस भी इसका ठीक हो गया, एनी टाइम आई कैन जस्ट कनेक्ट दिस शॉट, देन इट डजंट मैटर कि 50 के बाद आप मार रहे हैं या पहली बॉल पे ही मार रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा आप टाइम, पेस, पिच की देखते हैं, वो आपको कई दफ़ा 4-5 बॉलों में भी पता चल जाता है। इट बेसिकली डिपेंड्स कि आपको कमांड कितनी है उस शॉट पे। राइट। मोहम्मद जीशान का सवाल है वसीम अकरम आपसे कि सिंस रज़ाक, व्हाई हैव वी बीन अनेबल टू प्रोड्यूस अ फिनिशिंग ऑलराउंडर हु कैन बॉल फास्ट मीडियम? वी लॉस्ट प्लेयर्स लाइक अनवर अली, वी क्रिएटेड हाइप फॉर हमाद आजम। इफ गॉड गिफ्टेड प्लेयर्स आर नॉट अवेलेबल, देन व्हाई डू वी नॉट स्पेशली प्रिपेयर and give them at least a year? I can't answer this question. I'm not involved with the looking for a talent, upcoming talent. But you're spot on. We do need an all-rounder. Abdul Razak, Shahid Afridi. Obviously, we miss them. वो उनको आप 3 पे भी खिला सकते थे, अफरीदी ओपन भी कर लेता था, रज़ाक 3 पे भी कर लेता था, और दोनों अपने वनडे में 10-10 ओवर हर मैच में करते थे। ऑलराउंडर्स एंड T20 में तो ऐसे प्लेयर्स की बहुत ज़रूरत है। शुएब कासी का सवाल है। शुएब कासी कह रहे हैं क्वेश्चन फॉर द एंटायर पैनल वकार, एंड ही इज सेइंग दैट डू प्लेयर्स नो अबाउट देयर डाइट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ डाइट्स ऑन देयर इंडिविजुअल बॉडी, for different players, and if yes, then why they get injured or why do they not remain fit? They don't know that. That is the problem. अगर उनको खुद अपनी डाइट को नहीं, ये बंदा बैठा है ना मेरे लेफ्ट पे, इसको अपनी डाइट का पता है, इज फिट, he looks lean, and he's got power, he can run. I mean, at the age of what, 45, he's still doing really well. 45. 40?
नहीं आज बात कर 40 so basically कहने का मतलब ये है कि आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मलिक ने यहाँ मेरा ख्याल है एक दफ़ा नहीं कुछ 6 दफ़ा आपको डाइट के बारे में बताया भी है, प्रोटीन किस तरह लेनी है या कार्ब्स किस वक्त लेने हैं, so many things he told. He's probably the fittest we have got in this panel also, and of course he's still playing cricket, so he's your best man to tell you, and he's told us many times. The question is, Individual why bodies, can't diets for their individually they can learn? You can find out anything on your phone कि यार इसमें कितनी कैलोरीज हैं, इसमें क्या हो सकता है, किस में लेस कैलोरीज हैं, वो इसको पता है तो ये भी बताता होगा गूगल ने जो चीज़ आसान की है, जो असल चीज़ दी है, वो तो कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। सबसे पहले पता है क्या है, इसमें एक चीज़ करने वाली है कि प्रोफेशनल्स हैं, गेट इन टच विद देम, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट है या ट्रेनर है। स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ। एग्जैक्टली वसीम भाई, अगर आपने कुछ अचीव करना है और एक प्रोफेशनल वाली लाइफ गुजारनी है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और दूसरा एक सब उससे भी पहले जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको एक टेस्ट बोलता है, वो आपको ये कहता है कि आप एक वो फूड का कोई जो है फूड इनटेक का आप एक टेस्ट करवाएं, आपकी बॉडी वो टेस्ट में ये बता देगी कि आपको किस किस चीज़ से एलर्जी है। इट्स कॉल्ड द डीएनए टेस्ट, मैंने कराया है। उसके बाद इतनी मोटी बुक मिलती है आपको, 35 पेजेस का एक पूरी इतनी मोटी रिपोर्ट बुक मिलती है। दैट डीएनए टेस्ट बताता ही है कि आपके लिए कौन कौन से फूड या फ्रूट्स Grains, better for you, everything, grains, everything. I had that report also. I guess सबसे पहले न्यूट्रिशनिस्ट अच्छा वो आपको यही बताता है कि आप वो वाला टेस्ट करवाएं जो वसीम भाई ने बोला है, और उसके बाद आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा। हाँ, अगर आपको वाकई में कुछ अचीव करना है तो मारना पड़ेगा। अब जब हलवा पूड़ी या फलूदा आता है, आई स्वेयर फलूदा, मैं मतलब आई वुड डाई फॉर फलूदा, लेकिन बड़ा मुश्किल काम हो जाता है रुक जाना उस टाइम पे। कंफर्ट जोन से बाहर आए बगैर सच्ची बात बताओ कि तुम्हें रोकना पड़ता है। You die for फलूदा, you die for फलूदा, he kills the फलूदा। Yes, yes. और फायदा है कि या तो मैं किसी चीज पे आपकी said something very interesting। इसका क्या कहता है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है। एक्सीलेंस आपको कंफर्ट जोन से बाहर किसी भी चीज़ में, एनी प्रोफेशन ऑफ योर लाइफ, यहाँ बताया जाता है। यकीन करें, टीम में प्लेयर्स जो एकेडमी में आते हैं उनको बाकायदा फिजियो आपका और ट्रेनर रोज़ बताते हैं उनको इस चीज़ को कि ये चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खानी, लेकिन करना आपने, वो कहते हो कि करना आपने क्योंकि ज़ाहिर है आपके साथ हर टाइम तो कोई नहीं है ना। आप जब कमरे में आए हैं, आपने अगर खाना ऐसा ऑर्डर कर दिया है, आपने ऐसा खाना खा लिया है, आप ट्रेनिंग में वो चीज़ नहीं कर रहे जो आपको बताई गई, दैन सफ़र तो आपने करना है। प्लेयर को खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे टीम गेम है ना, किसी को वो खाना, अब 15 लोग हैं, किसी को वो खाना सूट करता होगा, किसी को नहीं करता होगा, तो इसीलिए आई गेस इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्लेयर टू फाइंड आउट कि क्या राइट ट्रेनिंग है आपके लिए, क्या राइट खाना है आपके लिए ऑफ सीजन में और ऑन सीजन में। देखिए बिल्कुल है। और मैं वसीम भाई को देखूँ कितना हमेशा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता हूँ आपको खाने के मामले में ना, कितने अच्छे तरीके से बच रहा होता हूँ मैं। आज उसने पूछा है मेरे से आने से पहले अजमत ने कि जी आपको कुछ चाहिए, मैंने कहा आई एम गुड, आई जस्ट हैव कप ऑफ कॉफ़ी। मैं आके बैठा हूँ, इतने समोसे, कचौरियाँ, दही बड़े और साथ में जलेबियाँ और जलेबियाँ। और वो जैसे ही अंदर आ रहा था ना ये सारा सामान, मैंने आपको कहा है वसीम भाई, जब आप और मैं बैठे हुए थे, मैंने कहा वो फखर भाई आने वाले अंदर और वही हुआ। इधर समोसे आए हैं 35 और इधर से ये एंटर। लेकिन वसीम भाई टू मैं कि बंदूक रखी और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कितने मंगाए ने। लेकिन टू बी फेयर एंड ऑनेस्ट वसीम भाई, चखिया तुसी सारा कुछ। Yeah, I did. That's what I'm saying. It's difficult. I had जलेबी, I'm a positive influence. समोसा नहीं ट्राई किया, कचौरी पूरी खाई है, दही बड़े की बाइट भी लिया इससे। They were all delicious, no doubt. और ये उनका कंफर्ट जोन, ये उससे बाहर आया। नहीं भाई, मेरा कंफर्ट जोन ये नहीं है। मेरा कंफर्ट जोन है जब मैं रिक्लाइनर पे बैठा होता हूँ, ये सब कुछ खाने के लिए मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूँ जाके। और आज 8-10 दफा निकले हैं। And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. We're going to see you on the other side.
Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching A Sports, 10 Sports and the Wise app, and also on YouTube. We know that a lot of you around the world are watching us on YouTube, and you send us a lot of good comments and a lot of great questions. Thank you very much for all the patronage. Truly appreciate it. With me, of course, I've got Shoaib Malik, Ms. Waqar, Younis, Wasim, Akram. I've got a question here for us, the Pavilion. Binte Adam ka sawal hai Wasim Akram aapse. She says, I'm 38, female, and diagnosed with diabetes. Can you please share book names to read to help me, as I am married with no kids, and it will help me to plan my family? That's a very Binte? yeah. क्या नाम था? Binte Adam. Binte Adam, Assalamu alaikum. I think that's the name. Yeah. Books on diabetes, I don't know. आपको तो मिल जाएंगी. आप तो ऑनलाइन पे जाके आप देख सकती हैं. Nothing, कोई ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है. डायबिटीज़ आपको डायग्नोज होगी. It's there. You have to fight it out. Please make sure your family is around you. Your husband will know कि आपको डायबिटीज़ है, और उसको भी एक दो लेक्चर्स में डॉक्टर के साथ जाना पड़ेगा. And if you can control your sugar levels, check your sugar levels regular basis, and of course exercise. जितनी भी आप कर सकती हैं, जितनी भी आप कैलोरीज बर्न करेंगी, उससे आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल रहेंगे. और प्लीज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि लिसन टू योर डॉक्टर. आपके पास बहुत लोग आएंगे, बहुत जानने वाले आएंगे, उसके पास जाओ, वो बंदे के पास इलाज है, वो नहीं है. इट्स साइंटिफिकली प्रूवन. व्हेन योर पैनक्रियास स्टॉप इन बिल्डिंग इंसुलिन, वो दोबारा नहीं रिप्रोड्यूस करते वो सेल्स. Right. एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि मेरी अम्मी को भी है. Yeah. और ठीक है, मैं फिटनेस फ्रीक, आप कुछ भी मुझे बोल लें, जो मैंने शुगर इनटेक बिल्कुल ज़ीरो की, वो मैंने अपनी अम्मी की भी वजह से, कि क्योंकि सम टाइम अगर आपको घर में शुगर है और जो बाकी के जो लोग हैं वो सामने खाते हैं, तो जाहिर बात है कि बैड इन्फ्लुएंस हो जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट आई डायबिटिक लाइक मी, अगर फ्रिज में पड़ी है एंड आई एम क्रॉसिंग something there, I've probably taken a nibble out of it without look देख तो नहीं रहा, but I'm quite disciplined. Now this can happen. Listening to that, I need to apologize. All the jalebis and faludas that in front of me every time. I'm very sorry about it. But I'm always open to sharing it with you. You know that. I love you. लेकिन all right, we have another से दूसरे रूम में लगानी है ना? लेकिन लगानी है क्या चीज़? ये जलेबी फलूदा. मुझे अपोलोजाइज कर लेना. मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ, और आप बाद में कर लेंगे. बाद में कर लेंगे. आने दो. अच्छा ठीक है, मिसबा भी फिलहाल आने दो, शो ख़त्म करो, जल्दी जल्दी खाना खाइए. सवाल एक आया था, कल आया था, सॉरी वो मैं आई फॉरगॉट कि किसका है ट्विटर हैंडल पे, बट सवाल ये था वसीम वकार आपसे कि आप लोगों ने अपने करियर्स में कितने छक्के खाए? आई थिंक वनडे का पूछा था मैंने, मजर से पूछा था. मजर ने फिर हमें स्टैट भेजे. पहले तो उसने कहा कि आप 2000 से बाद के स्टैट्स नहीं हैं. देन ही इवेंचुअली आई डोंट नो फाउंड आउट. वकार हैव bowled 666 overs in ODIs. I think that is. He conceded only 28 sixes. That's it. Well done, Vicky. Well done. 5 मैच नहीं मारने. आजकल तो 5 मैचेस और मैंने 756 ओवर किए और मुझे लगे हैं 15 छक्के. 756 ओवर्स में? Yeah, that's what Mazhar told us. Well, that's amazing. I mean, it was different time. Well done. Agha Bata, well done Agha Bata, both of you. एक इंटरेस्टिंग ट्वीट है ये, आबिद अली हमारे बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड क्रिकेटर हैं. इस आज के दिन पिछले साल वो 61 रन पे बैटिंग कर रहे थे जब उनको हार्ट अटैक हुआ था फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए. एंड आज फिर उसी टीम के खिलाफ उन्होंने 159 स्कोर किया है. एंड यू नो द ग्रेट रिकवरी फ्रॉम हार्ट अटैक. वेल डन. So Abid Ali, really well done. ट्विटर पे किसी ने हमें एक टैलेंट की वीडियो भेजी है. ये वीडियो आप चारों को मैं चाहता हूँ कि आप देखें, and then you can comment on that. ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है. Please take a look. Look at the talent that we have. 4-year-old child. Oh my goodness! Look at that footwork. Oh wow! Oh, and बुलाओ भाई. Look at this. Look at the balance, Misbah. उसकी हैंड्स देखें, लॉन्ग लीवर्स, मैन हैंड स्पीड, एंड जो वो स्पेशली बड़ा शॉट मार रहा है. Oh, look at that. Oh, he holds that. Straight bat. Look at this. Oh, look at this helicopter shot. Unbelievable. Oh, wow. Hopefully he'll play for Pakistan soon, inshallah. जिसकी हम बात करते हैं ना, टैलेंट, ये है टैलेंट. अब इसको ग्रूम करना है.
4 साल का, if you catch them young, that's just spectacular. That's just एक wonderful. रिक्वेस्ट है उसको साथ में फील्डिंग भी कराएगा थोड़ी थोड़ी जब बड़ा होगा तो। हाँ, थोड़ा फील्डिंग की भी उसको वो हम वो कंसंट्रेट नहीं करते ना, हम बैटिंग बॉलिंग ही सोचते हैं। Yeah, that's true. There is a third discipline in the game, and that is fielding. With that, कल के मैच के ऊपर नजर डाल लेते हैं। कल एक ही मैच है आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, और वो मैच जो है इंग्लैंड बामुकाबला श्रीलंका है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये बहुत ही क्रूशल मुकाबला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुड वांट कि श्रीलंका ये गेम जीते so that they can qualify for the semi-final, and if England win this, they go to the semi-final, join New Zealand in the top spot on the table, and that's the end of the defending champion. So this is going to be a very crucial game. इसके लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कल सुबह 11:30 बजे बराह रास्त right here on the ARY's app. And with that, our day comes to an end. Thank you, Shoaib. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. And thank you, Misbah. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. And folks, take care of yourselves, stay safe wherever you are, and be kind to each other. Good night.